السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے کے سلسلے میں ملک بھر میں ایس ایس ایف نیشنل کمیٹی کے ماتحت مختلف پروگرام کا انعقاد کیا جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سماج کی ترقی میں استاد کا کیا رول ہے، اس موضوع پر آپ سے چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شوکت بخاری صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس پروگرام میں ناچیز کو بلا کر عزت افزائی کی ہے۔ آج کا دن میرے لیے ناقابل فراموش ہے، کیونکہ آج یعنی 2016 عیسوی میں سابق صدر جمہوریہ پرناب مکھرجی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ناچیز کو نیشنل ٹیچر ایوارڈ فار ٹیچرز نیشنل ایوارڈ فار ٹیچرز مل گیا ہے۔ الحمدللہ میں آج آپ سے میں مخاطب ہوں، اس ٹیچرز کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں، استاد کا کیا رول ہے سماج کی تشکیل وقت میں، اس کے بارے میں میں چند باتیں آپ سے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سماج کی ترقی میں یا ایک مہذب سماج کی تشکیل میں استاد کا کیا رول ہے، استاد کا رول کیا ہے، ہم غور سے سوچنے کی بات ہے۔ مسلمانوں کی پسماندگی آپ لوگ خوب جانتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی مسدس مدو جزل اسلام کے مقدمے میں مختصر طور پر مسلمانوں کی پسماندگی کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں: قوم کی حالت تباہ ہے، عزیز ذلیل ہو گئے، شریف خاک میں مل گئے ہیں، علم کا خاتمہ ہو گیا ہے، خاتمہ ہو چکا ہے، دین صرف نام باقی ہے، افلاس گھر گھر کی پکار ہے، اخلاق بالکل بگڑ گئے ہیں اور بگڑے جاتے ہیں، تعصب کی گنگور گھٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے، جہالت کی تقلید سب گردن پر سوار ہے، امیر جو قوم کو بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، غافل اور بے پرواہ ہے، علماء جن کو قوم کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے، وہ زمانے کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے ناواقف ہے۔ کتنا خوبصورت انداز میں مولانا الطاف حسین حالی اس پسماندگی ظاہر کیا ہے۔ مسدس مدو جزل اسلام میں ایک بند دیکھیے، مسلمان کی پسماندگی اس میں ظاہر ہوتا ہے: یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، پھور میں جہاز آ کے جس کا پڑا ہے، پھور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گمان ہے ہر دم کے اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ پھر حالی کہتے ہیں چھتیں مسلمانوں سے کہتے ہیں چھتیں پاٹ لے تاکہ باران سے پہلے، چھتیں پاٹ لے تاکہ باران سے پہلے، سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے، کل کون تھے آج کیا ہو گئے ہم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے ہم۔ دیکھیے مسلمانوں کی پسماندگی کتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے درمیان جہالت
या पसमानदगी इस कदर आ गई है हमारी नाख्वानदगी पर हिंदुस्तान की हुकूमत रिसर्च कर रही है। सचार कमेटी के रिपोर्ट हुकूमत वो हमारे हुकूमत के सामने है। मुसलमानों की तालीमी और इक्तिसादी पसमानदगी का अलम है वो SC/ST के पीछे है। देखिए, और कितने खूबसूरत अंदाज में ये सब तो जाहिर किया है। ये मुसलमान की पसमानदगी अल्लामा इकबाल में इसके बारे में कितने खूबसूरत अंदाज में हमको आगाह करने के लिए मुसलमान को ताकीद दी। उन्होंने कहते हैं ये खड़ी, अल्लामा इकबाल कहते हैं ये खड़ी माशर की है, ये खड़ी माशर की है तू अर्श से ये माशर में है, ये खड़ी माशर की है तू अर्श से ये माशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। न समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। इस तरह बहुत सारे अशआर और अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों से आगाह करने के लिए बता गया है। और हम सोचने की बात है, तालीम क्या है, तालीम क्यों है, इसमें टीचर का क्या रोल है। हम संजीदगी के साथ ये सोचने की जरूरत है। तालीम का डेफिनेशन, इस तालीम की एक तारीफ है, बेहतरीन तारीफ ये बता सकते हैं, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ हायर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी के बेहतरीन सलाहियतें और खूबियां हासिल करने की खातिर इंसानी ताकत, इंसानी वसाइल, इंसानी ताकत इस्तेमाल करने का अमल, वही है एजुकेशन। बेहतरीन खूबी हासिल करना, अचीव करना, यही है एजुकेशन। लेकिन हम सोचने की बात है, तालीम के जरिए ये खूबियां हासिल होती है या नहीं है। लेकिन ये ग्रेड मिलना तालीम का मकसद नहीं है। जिंदगी की महारतें, सलाहियतें हासिल करना, मवाद पर गहरा और जानकारी हासिल करना और दूसरों की मुश्किलात पर खबरदार होकर और दूर करने की कोशिश करना, मसाइल का जायजा करने की सलाहियत, सही वजूहात को पहचान कर हल करने और खुद को अपना रवैया इख्तियार करने की सलाहियत। इसके अलावा जमहूरी शऊर, इंसान दोस्ती, अमन एहसासी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यमपदी, और हमदर्दी, रवादारी वगैरह अक़दार व रवैया हासिल करने की जरूरत है। खुद अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देना और हुकूक के लिए आवाज उठाना भी इसका मकसद है। इस अगराज व मकासद के अलावा इस्लामी तालीमात का अहम मकसद खुदा और परहेजगार, एक मुहज्जिब, एक दीनदार आदमी बनने के लिए बुनियादी दीनी तालीम हासिल करना, ये सब एजुकेशन का मकसद है। लेकिन अब सोचने की, गौर से सोचने की जरूरत है, ये सारे मकासद तालीम के जरिए हासिल होते हैं या नहीं है। और माहिरान नफ्सियात कहते हैं एजुकेशन के जरिए सबसे बड़ी चीज यह है कि वो बेसिक बच्चों में पैदा करने की ये सलाहियत है तनकीदी शऊर यानी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में पैदा करना तालीम का अहम मकसद है। तनकीदी शऊर उस वक्त लोगों में पैदा होता है जब मुतकाबिज तबके के खिलाफ आवाज उठाने और सवाल करने की कुव्वत पैदा होती है। मुतकाबिज तबके क्या करते हैं, हम तो वो खामोशी चाहते हैं, वो खामोशी, उनके खिलाफ आवाज उठाना वो नहीं चाहते। और उसके बहुत सारे मिसाल हम कर सकते हैं। लेकिन ये समाजी मसाइल, यहाँ तो बहुत सारे समाजी मसाइल हैं। ये समाजी मसाइल देखकर, जायजा करके और सवाल उठाने की ये समाज की तश्कील के लिए, बेहतर समाज की तश्कील के लिए और बदलाव के लिए
इसमें इस मसले को पेश नजर सवाल करने की सलाहियत, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, किन लोगों का ज़ौक़ और शौक़ की हिफाजत की जा रही है, आखिर इसका नतीजा क्या है। हर एक समाज का मसाइल जायजा लेते हुए इन सवालों को खुद ब खुद पूछे और इल्म की तश्कील करके रफ्ता रफ्ता समाजी शूर बदल जाते हैं। और इसे यही है एजुकेशन का मकसद। लेकिन हम क्या करते हैं, एजुकेशन डिग्रियां हासिल करने के लिए एजुकेशन देते हैं, उस्ताद भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाते रहते हैं, बच्चे भी ऐसे हैं एग्जामिनेशन पास होने के लिए और उम्दा नौकरी मिलने के लिए तालीम हासिल होती है। लेकिन एजुकेशन का मकसद वो नहीं है। इसको हम कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एजुकेशन है। इंस्ट्रूमेंटल एजुकेशन है। इंस्ट्रूमेंटल एजुकेशन से समाज को कोई फायदा नहीं है, लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, तालीम बराए तगय्युर पैदा, बदलाव लाना चाहिए समाज में। हम तो एक शख्स को तन्हा कुछ नहीं कर सकते। समाज में रहकर समाज का मसाइल को क्या है, मसाइल कुशाई की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पैदा करने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं, क्या खूब कहा है, क्या है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तालीम बराए तगय्युर में समाजी मसाइल का हल निकालते हुए समाजी तब्दीलियां लाता है। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मसाइल कुशाई की सलाहियत पैदा होती है और मुख्तलिफ मसाइल के मुख्तलिफ जाविये नजर से देखने का मौका भी मिल जाता है। और इसके बाद मैं कमरे जमायत में ये कुव्वत, मसाइल कुशाई की सलाहियत और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वह सब पैदा करने के लिए उस्ताद क्या करना चाहिए, मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियां उनको देनी चाहिए। उनमें तमाम जाविये नजर से समाजी मसाइल को मुख्तलिफ जाविये नजर से देखने के लिए काबिल सरगर्मियां शामिल करें और मुख्तलिफ हालात का और नजरियात, मकातिब फिक्र, स्कूल ऑफ थॉट का मवाजना करके क्या उनको मिलने का, उनको जायजा करने का मौका फराम करें। और समाजी तरक्की के लिए ये सब बहुत जरूरी है। सही और गलत क्या है, सही और गलत की पहचान, इसके लिए उस्ताद को चाहिए कि मौजूदा समाजी निजाम का जायजा लेने के लिए काबिल सरगर्मियां दे। ये सब इसके जरिया हम तो क्या दे सकते हैं उस्ताद को की अजमत, उसका की फजीलत के बारे में और ज्यादा बातें आप खुद जानते हैं उसका की फजीलत क्या है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बेशक मैं एक उस्ताद की हैसियत से इस दुनिया में भेजा गया है, मुझे इस दुनिया की तरफ भेजे। इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन मुयस्सर इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन। इसलिए एक उस्ताद में और उस्ताद में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, ये सारी खूबियां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में मौजूद है। और एक वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद की अजमत के बारे में ये बता सकते हैं। एक बार महाद बिन जबल, सहाबान महाद बिन जबल से उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाया, उन्होंने क्या कहा उनसे, उनको क्या है मशवरा दिया, आपके जरिए एक शख्स अगर हिदायत मिले और नेक रास्ते पर आ जाए तो इस दुनिया की सारी चीजों से वो काम बेहतर है। और इसके साथ मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। और एक बेहतर समाज की तश्कील के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अंजाम दिया, ये सारी बातें आप खूब वाकिफ हैं। और इसके लिए एक उस्ताद की हैसियत से ये यौम असातिज़ा के दिन पर
टीचर्स दिन के मौके पर एक उस्ताद की हैसियत से इस दुनिया की तरक्की व तरवीज के लिए, इस दुनिया की एक मुहज्जिब समाज की तश्कील के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आम तो शमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, एक शेर है, शमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्तियां अगर तूफान से निकल सकती हैं, कश्तियां अगर तूफान से निकल सकती हैं। और मेरे दोस्त मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर हर वक्त भी बदल सकती है, तकदीर हर वक्त भी बदल सकती है। उसके लिए हमारी कोशिश भी चाहिए, तकदीर तो बदल सकती है। और एक भी शेर है, ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, ए दोस्त वक्त की शाह को हिलाना होगा, ए दोस्त वक्त की शाह को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मैं आखिर ये कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ आखिर में एक शेर भी कहते हुए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। और तू शाहीन है, तू शाहीन है। सारे टीचर्स से मैं बताता हूँ, पूरे टीचर्स से, हमारे इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड के और हमारे के पूरे टीचर्स में ये शेर कहते हुए मैं इजाजत चाहता हूँ। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।